Students, today we will discuss RMS value, average value, form factor, crest factor in these lectures. Clear? First of all, we will see what is the RMS value. Clear? The RMS value means it is the root mean square value. Clear? For example, if you see, this is the wave, this is the I1, T1, this is the I2, this is the T2, this is I3, this is T3 and so on. Clear? Then the RMS square, that is the root mean square value. Clear? यानी कि हम क्या करेंगे? We will find the mean of the square. And what is the mean of the square? That is the I1 square plus I2 square plus I3 square plus IN square upon T1 plus T2 plus T3 plus Tn. Clear? And this is the mean square, and for the RMS value it will be taken as under root. Clear? Now you will see what is the root mean square value. Clear? It is very important. Regarding this, it is that current which produces same amount of heat as the DC current in resistance R. Clear? Let I is the function of time. IT क्या शो कर रहा है कि IT is the function of time. Clear? If dH is the heat produced in time dt, then what is the dH? That is equal to the I square T R into dt. Clear? यहाँ पर ये जो T ब्रैकेट में आ रहा है, ये क्या शो कर रहा है? The current is the function of time. Clear? If T is the time period, then the total heat produced, तो total हमें क्या दिया हुआ है? dH. तो हमें H निकालना है, तो क्या करेंगे? We will integrate the function from 0 to capital T, where T is the time period. Clear? Then what is the H? That is equal to the 0 to T I square T R into dt. This is the equation number 1. Clear? Now you will see, if we use the DC supply, that is, if IDC is the DC current, then heat produced in time T, that is the H, that is equal to the IDC square R into T. Clear? अब आप देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है. तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, क्लियर, अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो क्या आएगा? दैट इज द आई DC square R into T, that is equal to the 0 to T, clear, I square T into R into dt. Clear? R cancelled from both sides. Then what is this? Then I DC square is equal to the 1 upon T, 0 to T, I square T into dt. Clear? अब यहां पर ये जो IDC है, ये क्या चीज है? It is called the I effective or IRMS. Clear? तो यहां पर हम इस IDC को क्या लिखते हैं? IDC, that is equal to the I effective. Clear? Or you can say that is the IRMS. Clear? तो IRMS कितना हो जाएगा? The IRMS. Clear? तो IRMS is equal to the under root of 1 upon T, 0 to T, I square T into dt. Clear है? This is the RMS value. IRMS, that is equal to the under root 1 upon T, 0 to T, I square T into dt. Clear? अब ये तो हुआ करंट के लिए. अब हम वोल्टेज के लिए देखें. ध्यान से देखिए,
let v is the function of time. Let v is the function of time, that is the vt. Clear? That is the vt. Clear? In time t. Then what is the dh? You know that. What is the dh? h, that is equal to the v square t, और यहां पर r के लिए क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, अपॉन r इंटू dt. क्लियर? दैट इज द h, इट इज इक्वल टू द 0 टू t, और यहां पर कितना आया, v स्क्वायर t अपॉन r इंटू dt. क्लियर? when it is the dc supply, then it is the vdc, that is the voltage. This is the voltage. Clear? Voltage. Then h is equal to the vdc square upon r into dt. Clear? Again, if you will put equation number 1 and equation number 2 equal, then you will see, then what is the value? That is the Vrms. Clear? That is the Vrms, that is equal to the under root of 1 upon t, 0 to t, v square t into dt. तो क्लियर है? तो एक्चुअल में जो Vrms है या Irms है, दिस इज द इफेक्टिव वैल्यू. क्लियर? और इस इफेक्टिव वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? V से इट इज द RMS वैल्यू. क्लियर? सपोज द टाइम पीरियड, यहां पर क्या है, इट इज द t इज द टाइम पीरियड. इफ t इज गिवन इन सेकंड्स, अगर टाइम पीरियड हमने किस में दे रखा है, सेकंड्स में दे रखा है, तो 1 upon t, 0 to t, I square t into dt. Vrms, that is equal to under root of 1 upon t, 0 to t, v square t into dt. क्लियर? ध्यान से देखिए, if time period is given in term of angle, या आप कह सकते हैं in term of radian. Clear? Then Irms is equal to the under root of, clear, 1 upon t, 0 to t. Clear? That is the I square omega t into d omega t. Clear? तो ओमेगा टी क्या होता है बेटे? थीटा या अल्फा. तो ओमेगा टी थीटा, that is equal to the omega t. Clear? Now you can say it is the 1 upon t, 0 to t, I square, किसका फंक्शन है? थीटा का, into d थीटा, and that is the Irms. क्लियर? तो आपको हमेशा ये पहले चेक करना पड़ेगा कि जो टाइम पीरियड है वो सेकंड में दिया हुआ है या इन टर्म ऑफ एंगल. और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल को हम किस में लेंगे? रेडियंस में लेंगे. क्लियर है? तो इट इज ऑल अबाउट द RMS वैल्यू. क्लियर? अब सबसे पहले देखिए कि अगर हमें RMS वैल्यू निकालनी है तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारी वेव फॉर्म है ये सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है. क्लियर? ध्यान से देखो बेटे कि कोई वेव फॉर्म है हमारे पास, ये कब सिमेट्रिकल होगी? इट विल बी सिमेट्रिकल व्हेन इट विल फुलफिल ऑल थ्री कंडीशन. पहली क्या है बेटे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईच हाफ इज सेम. मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड. यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ ईच हाफ इज सेम. सेकंड, टाइम पीरियड ऑफ ईच हाफ इज सेम. क्लियर? एंड द थर्ड, shape of both half is identical.
कि जैसे हमारे पास ये कोई वेव है, क्लियर, दिस इज द 0, दिस इज द पाई एंड दिस इज 2 पाई। ये क्या है, ये पॉजिटिव हाफ है, ये कैसा हाफ है, ये नेगेटिव हाफ है, एंड द आई दैट इज इक्वल टू द आई नॉट से साइन थीटा। तो यहां पर भी हमने क्या ले लिया कि यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है ये भी आई नॉट है, और यहां पर जो वैल्यू है ये कितना है, ये भी माइनस आई नॉट। क्लियर। तो यहां पर देखिए कि जो वैल्यू है आई बराबर आई नॉट साइन थीटा, तो ये क्या है हमारे पास, फंक्शन है। क्लियर। अब ध्यान से देखें, ये हमारे पास क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। क्लियर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। क्लियर। 180 तक क्या रहेगा, यहां पर साइन पॉजिटिव रहेगा। क्लियर। अब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि पाई टू 2 पाई इट इज इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो यहां पर जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो हमेशा कैसी आएंगी, इट विल बी नेगेटिव। क्लियर। तो आपने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू सेम है, आई नॉट। हाफ पीरियड कितना है, 0 टू पाई का डिफरेंस पाई, और 2 पाई और पाई का डिफरेंस कितना है, पाई। तो दोनों हाफ में ये भी हो गया और ये भी हो गया। शेप ऑफ बोथ हाफ इज आइडेंटिकल, यानी कि पहला हाफ भी कैसा है, साइनसॉइडल है, और दूसरा भी साइनसॉइडल है। क्लियर। तो अगर वेव सिमेट्रिकल है तो ये क्या करेगा, ये इन ऑल 3 कंडीशंस को फुलफिल करेगा। क्लियर। लेकिन अगर एक भी कंडीशन इसमें मिसमैच हो रही है तो वेव फॉर्म कैसी हो जाएगी, इट विल बी अनसिमेट्रिकल। कैसा हो जाएगा, इट विल बी अनसिमेट्रिकल। क्लियर है। अब देखिए ये जो था, ये क्या था बेटे, ये था हमारे पास हाफ सिमेट्री। क्या चीज है, हाफ सिमेट्री। क्लियर। अब आता है क्वार्टर सिमेट्री। क्या आता है, क्वार्टर सिमेट्री। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वार्टर सिमेट्री। क्लियर। अब देखो क्वार्टर सिमेट्री में भी ये तीनों के तीनों कंडीशन फुलफिल होंगी, बस हमें क्या करना है, ये क्वार्टर कर देना है। क्या कर देना है, क्वार्टर। यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये भी क्वार्टर हो जाएगा। क्लियर। और यहां पर ये भी क्या हो जाएगा, क्वार्टर हो जाएगा। क्लियर। और ईच क्वार्टर कैसा होना चाहिए, देखिए यहां पर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू, इस क्वार्टर की भी आई नॉट है, इसकी भी आई नॉट है, इसकी भी आई नॉट है, इसकी भी आई नॉट है। टाइम पीरियड कितना है, ये भी पाई बाई 2 है, ये भी पाई बाई 2 है, ये भी पाई बाई 2 है, और ये भी पाई बाई 2 है। क्लियर। यानी कि अगर हमारे पास हाफ सिमेट्री है और क्वार्टर सिमेट्री है तो हम आरएमएस वैल्यू में जो क्या होगा, पहली चीज क्या है कि आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए पहला क्या है कि आप चाहें तो टाइम पीरियड टी ले सकते हैं, यानी कि टोटल टाइम पीरियड, यानी कि टी बराबर टी, दैट इज द टोटल पीरियड। क्लियर। सेकंड, अगर हमारे पास हाफ सिमेट्री है तो टी बराबर कितना होगा, टी बाई 2। क्लियर। यानी कि यहां पर हम इसको हाफ पीरियड लेंगे। क्या लेंगे, हाफ पीरियड। क्लियर। और थर्ड, अगर क्वार्टर पीरियड है तो टी बराबर कितना हो जाएगा, टी बाई 4, दैट इज द क्वार्टर पीरियड। क्लियर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि हमें आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हम चाहे तो पूरा टाइम ले सकते हैं, टोटल टाइम पीरियड लेंगे, हम चाहे तो हाफ टाइम पीरियड ले सकते हैं, हम चाहे तो क्वार्टर टाइम पीरियड से भी आरएमएस वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है। एक एग्जाम्पल करते हैं, केवल आज एक एग्जाम्पल करेंगे जिससे पता चलेगा कि हम किस तरीके से जो है इसको टोटल टाइम पीरियड से, हाफ पीरियड से और क्वार्टर पीरियड से जो है हम आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है। ध्यान से देखिए, yes, now we will take an example of sinusoidal wave. Clear.
We are finding the RMS value first when we are considering the total time period. Clear? We are not using the half symmetry, we are not using the quarter symmetry, but simply we are taking the a waveform having the time period t. Clear? You see the I that is equal to the I naught sin theta, I RMS square that is equal to 1 upon t 0 to t I square theta into d theta. Clear? ये जो थीटा है क्या शो कर रहा है कि I is the function of theta. Clear? अब देखिए कि I किसके बराबर है I naught sin theta, तो 1 upon 2 pi. What is the time period? Time period of the waveform is 2 pi. 1 upon 2 pi 0 to 2 pi I naught square sin square theta into d theta. मैंने क्या करा I naught square को बाहर निकाल दिया, तो I naught square upon 2 pi that is the 0 to 2 pi sin square theta into d theta. This sin square d theta, this sin square theta can be written as 1 minus cos 2 theta upon 2. इस 2 को मैंने बाहर निकाल दिया तो कितना हो गया I naught square upon 4 pi 0 to 2 pi 1 minus cos 2 theta into d theta. क्लियर? अब मुझे क्या करना है, मुझे इंटीग्रेट करना है, तो I naught square upon 4 pi 1 का कितना हुआ थीटा, cos 2 थीटा का sin 2 थीटा upon 2, तो थीटा माइनस sin 2 थीटा upon 2 0 to 2 pi. क्लियर? ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे अपर लिमिट, तो 2 pi माइनस sin 4 pi by 2 माइनस फिर 0 रखा तो 0 माइनस sin 0 by 2, ये वैल्यू कितनी है 0, ये वैल्यू भी 0 है, तो अब ध्यान से देखिए कितना आया I naught square अपॉन 4 pi into 2 pi, 2 pi से कैंसिल होके कितना आ जाएगा I naught square by 2, and this is the I RMS is equal to the I naught by root 2. Now we will find the RMS value using the half symmetry. Clear? हाफ सिमेट्री का मतलब क्या है कि इट इज सिमेट्रिकल. देखिए ये हाफ और ये हाफ, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, टाइम पीरियड पाई, यहां पर भी पाई है, और जो शेप है वो साइनसॉइडल है, यानी कि यहां पर हाफ सिमेट्री है. क्लियर? तो जब हाफ सिमेट्री होती है तो हम आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए केवल हाफ पीरियड को यूज कर सकते हैं. अब देखिए यहां पर जो टोटल पीरियड है वो कितना है 2 पाई, तो हाफ पीरियड कितना हो जाएगा पाई हो जाएगा, तो आई आरएमएस स्क्वायर इज इक्वल टू द 1 अपॉन पाई 0 टू पाई आई थीटा कितना है आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा, दैट इज द आई नॉट स्क्वायर अपॉन पाई 0 टू पाई साइन स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा. साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, हमने यहां पर वैल्यू रखा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई 0 टू पाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा इनटू डी थीटा. क्लियर? दैट इज द आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई. अब इंटीग्रेट करेंगे 1 का कितना आएगा थीटा, cos 2 थीटा sin 2 थीटा बाई 2 0 टू पाई. अब हमने लिमिट रखा, पहले अपर लिमिट फिर क्या रखा है लोअर लिमिट. क्लियर? तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई, पाई माइनस साइन 2 पाई बाई 2 0 माइनस साइन 0 बाई 2, ये वैल्यू भी 0 है, ये वैल्यू भी 0 है, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई into pi that is equal to I naught square by 2 and the I RMS that is equal to the I naught by root 2. क्लियर? तो ये जो वेव फॉर्म है RMS वैल्यू इस वेव फॉर्म के निकाली, ये हमने किससे निकाली है हाफ सिमेट्री से. क्लियर? अब हम इसको देखते हैं कि यही जो वैल्यू है कैलकुलेट करने के लिए हम क्वार्टर सिमेट्री का भी यूज करेंगे. Now we will find the RMS value of the same waveform by using the quarter symmetry. Clear? If we see in quarter symmetry, we take the quarter period. Clear? This is the quarter period. Clear? Now you will see what is the time period t 2 pi upon 4, that is the pi by 2. Clear? तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है 1 upon t 0 to t I square theta into
d थीटा, तो 1 अपॉन पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 आई नॉट स्क्वायर अपॉन पाई, 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, दैट इज द 2 आई नॉट स्क्वायर अपॉन पाई। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। अब मैंने इसको क्या करा, इस 2 को क्या करेंगे हम बाहर लेके आए या नहीं, तो देखिए ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो कितना आ गया आई नॉट स्क्वायर अपॉन पाई, 0 टू पाई बाई 2 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब आई नॉट स्क्वायर अपॉन पाई इंटीग्रेशन करके कितना आएगा थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2। क्लियर। जब आपने लिमिट रखा तो अपर लिमिट रखा तो पाई बाई 2 माइनस साइन पाई अपॉन 2 माइनस 0 0, दैट इज द आई नॉट स्क्वायर अपॉन पाई इंटू पाई बाई 2, पाई से पाई कैंसिल एंड दैट इज द आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आई आर एम एस, दैट इज इक्वल टू द आई नॉट बाई रूट 2। अब आपने देखा कि हमने यहाँ पर हाफ सिमेट्री भी यूज किया, क्वार्टर सिमेट्री भी यूज किया और टोटल टाइम पीरियड भी। क्लियर। अधिकतर हम ये कहते हैं कि जो आरएमएस वैल्यू निकालते हैं उसको हम टोटल टाइम पीरियड के लिए भी निकालते हैं, उसी से निकालना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ वेवफॉर्म इस तरीके से आती हैं कि देखिए फॉर एग्जांपल एक छोटी सी वेवफॉर्म मैं दे रहा हूं आपको, ध्यान से देखें, जहां पर हम इस क्वार्टर का यूज करेंगे। देखो भाई सपोज हमारे पास ये कोई वेवफॉर्म है, क्लियर, ये वेवफॉर्म दिखाई दे रहा है, क्लियर। से दिस इज द 0, this is the 2, this is the 4, this is the 6 and this is the 8, clear, and it is the time period in seconds, clear, and this is the VT, यानी कि ये वोल्टेज है और सपोज ये जो वोल्टेज है हमारे पास वैल्यू से दिस इज द 10 वोल्ट, क्लियर। वी हैव टू फाइंड द आरएमएस वैल्यू, क्लियर। अब हमारे पास क्या तरीका था कि या तो हम 0 टू 2 की एक इक्वेशन निकालते, फिर 2 से लेकर 6 की एक इक्वेशन निकालते और फिर 6 से लेकर 8 तक की इक्वेशन निकालते और 3 इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ता, क्लियर। लेकिन यहां पर देखिए क्वार्टर सिमेट्री है, ये और ये एक से हैं, देखिए ये चारों एक से है ना, मैक्सिमम वैल्यू 10, यहां पर भी कितना है 10, क्लियर। यहां पर भी ट्रायंगुलर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस कर्व बिकॉज द वोल्टेज इज द फंक्शन ऑफ टाइम। अब देखिए कि y इज इक्वल टू कितना होता है mx, y पर क्या है v, क्लियर, तो v, x पे क्या है t, तो v बराबर कितना होगा mt। अब ध्यान से देखिए व्हाट इज द m, इट इज द स्लोप, स्लोप क्या होता है tan थीटा, perpendicular upon base, that is the 10 upon 2 that is into t, that is v is equal to 5t, clear. You know that v RMS square that is equal to 1 upon t, 0 to t, clear, that is the v square t into dt, clear. अब क्योंकि क्वार्टर है तो अप्लाइंग द क्वार्टर अप्रोच, तो यहां पर क्वार्टर टाइम टेबल के टाइम पीरियड कितना होगा 2 सेकंड, तो कितना हुआ 1 अपॉन 2, 0 टू 2 और v कितना था 5t, दैट इज द 5t स्क्वायर इनटू dt, क्लियर, दैट इज इक्वल टू द 25 by 2 और ये कितना आ रहा है 0 टू 2 t स्क्वायर इनटू dt। t स्क्वायर को इंटीग्रेट करिए कितना आएगा t³ by 3, तो 25 अपॉन 2, क्लियर, इंटीग्रेशन t³ अपॉन 3, क्लियर, तो 25 अपॉन 2 इंटू t, अपर लिमिट रखिए 0 टू 2, तो इंटू 8 अपॉन 3, 2 4 सा, क्लियर, दैट इज इक्वल टू द 100 अपॉन 3, क्लियर। देन व्हाट इज द VRMS, VRMS that is equal to the 10 upon root 3 or you can say 10 root 3 upon 3, क्लियर है। तो ये हमारे पास क्या मिला VRMS, क्लियर।
तो जब हमने ये क्वार्टर वाली जो थ्योरी थी इसको लगाया तो आपने देखा कि इस अप्रोच से हमने जो आरएमएस वैल्यू निकाल दी वो बहुत आसानी से निकाल दी। क्लियर? ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको करवाई है ये कई बार एकेटीयू और यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आ चुकी है। क्लियर? तो आज हमने देखा कि आरएमएस वैल्यू में हमने साइन वेव देखी। क्लियर? साइन वेव में हमने इसको पूरे टाइम पीरियड से आरएमएस निकाला, फिर हमने हाफ सिमेट्री से भी निकाला, क्वार्टर सिमेट्री से भी निकाला, और क्वार्टर सिमेट्री का एक यूज हमने इस ट्रायंगुलर वेव में देखा। क्लियर? कल जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और वेवफॉर्म जो है उनका आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, देन वी विल डिस्कस द एवरेज वैल्यू। क्लियर? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट on my email. Thank you.